So welcome everyone. We apologize for the slight delay. We are on Facebook now. So this is the webinar on effective personal and business communications. And I welcome Madhubala Sharma. So welcome Madhu. Thank you so much, Prashant. Yes. तो आप सब लोगों का फिर से स्वागत है. हम लोग हमारा आज का जो वेबिनार है वो है इफेक्टिव पर्सनल एंड बिजनेस कम्युनिकेशन के ऊपर. और हमारे एनएबी दिल्ली की एक एक्स स्टूडेंट, हम इनको एक स्टार कहते हैं, सुपरस्टार कहते हैं, मधुबाला शर्मा आज हमारे साथ है. तो ये आज सेशन आगे बढ़ाएंगी और आप अपने क्वेश्चंस वगैरह कमेंट बॉक्स में डालते रहिए और बीच बीच में हम क्वेश्चंस भी लेंगे. सेशन कोशिश करेंगे कि इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही करें. So over to you, Madhu. Thank you so much, Prashant, and hello everyone. Namaste, good afternoon, good evening. उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे और सेफ होंगे. और मैं before I get into communication skills and effective communication skills, what I want to say is that NAB की मैं ex student तो हूँ, लेकिन NAB मेरा एक second home है और NAB ने ही मेरी फाउंडेशन सेट की है. तो आज कल अगर NAB ने मेरी जिंदगी बनाई तो आज मेरी जो जिंदगी बनी है उसका काफी हद तक श्रेय मैं NAB को दे सकती हूँ. एक प्लांट की तरह NAB ने मुझे सींचा है और NAB continues to grow and help many others like me, and I'm sure that the future is going to be even brighter with the support of National Association for the Blind. So before we begin, 3 cheers for NAB. Hip hip hooray, hip hip hooray, hip hip hooray. So with that, moving on to the topic of effective communication. Well, what is communication and what is effective communication? अभी अगर मैं आपसे कुछ कह रही हूँ, आपसे बात कर रही हूँ, ये communication तो है, लेकिन ये effective communication कब मानी जाएगी? हम इस पे चर्चा करेंगे और हम इस पे भी बात करेंगे कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्यों नहीं हो पाती है, वो चैलेंजेस क्या आते हैं, वो बैरियर्स क्या होते हैं जो हमारी कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाने से रोकते हैं. और उसके बाद मैं आपके साथ कुछ टिप्स और टेक्निक्स शेयर करूंगी जिससे कि हम और आप अपने पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ और बिजनेस लाइफ हर तरफ अच्छा सकते हैं और इफेक्टिव हो सकते हैं. So before we get to those tips and techniques and understanding the finer details of it, I'm going to play a small video for you. ये जो वीडियो है ये YouTube पे भी अवेलेबल है और एक कॉमेडी है, एक पैरोडी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा मुझे और मैं आपके साथ शेयर करूंगी और उसके बाद देखते हैं कि ये कितना इफेक्टिव है. इफेक्टिवनेस के तराजू में अगर आप इसका माप तोल करें तो ये कहाँ पहुंचेगा. So मैं अभी आपके के लिए ये वीडियो प्ले कर रहा हूँ. Media controls, movies and TV. Movies and TV, play button tag. Mr. President, Condoleezza Rice is here to sing it. Good, send her in. Yes, sir. Morning, Mr. President. Oh, Condoleezza, nice to see you. What's happening? Well, Mr. President, I have the report here about the new leader in China. Wait, Condi, lay it on me. Mr. President, who is the new leader of China? Well, that's what I want to know. Well, that's what I'm telling you, Mr. President. Well, that's what I'm asking you, Condi. Who is the new leader of China? Yes. I mean the feller's name. Who? The guy in China. Who? The new leader of China. Who? The Chinaman. Who is leading China, Mr. President? What are you asking me for? I'm telling you, who is leading China. Well, I'm asking you, Condi, who is leading China? That's the man's name. That's whose name? Yes. Will you or will you not tell me the name of the new leader of China? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Arafat is in China. I thought he was in the Middle East. That's correct, sir. Then who is in China? Yes, sir. Yasser is in China? No, sir. Then who is? Yes, sir. Yasser? No, sir. Connie, you're starting to piss me off now, and it's not because you're black, neither. I need to know the name of the new leader of China, so I want you to get me the Secretary General of the United Nations on the phone. Coffee, Anna? No, thanks. And Condi, call me George. Stop with that Ebonics crap. You want coffee? No. You don't want coffee? No, but now you mention it, I could use a glass of milk, and then get me the UN. Yes, sir. Not Yasser, the guy at the United Nations. Coffee. Milk! Will you please make that call? And call who? Well, who's the guy at the UN? No, who is the guy
in China. Will you stay out of China? Yes, sir. And stay out of the Middle East. Just get me the guy at the UN. Coffee. All right, with cream and 2 sugars. Now get on the phone. Hello, Rice here. Rice, good idea. And get a couple of egg rolls too, Condi. Maybe we should send some to the guy in China and the Middle East. Can you get Chinese food in the Middle East? I don't know. Title is Movies and TV. Button to act. So ये एक छोटा सा Title is Desktop 1. फनी Meeting वीडियो था controls जो to move to मैंने an item. सोचा आप सबके साथ Alert, yes. शेयर करूंगी और I hope you enjoyed it and had a couple of few good laughs, and with those good laughs also saw how challenging it was for them to communicate with each other. I'm sure effectiveness के तराजू में ये खरा तो नहीं उतरा होगा. तो क्या देखा हमने इसमें, क्या challenges, क्या barriers face किए. कई बार हम बोलते हैं कि लैंग्वेज सेम बोलनी चाहिए, और जब हम सेम लैंग्वेज बोलते हैं तो कम्युनिकेशन बैरियर ब्रिज हो जाता है. लेकिन हमने यहाँ पर देखा कि बैरियर्स फिर भी यहाँ पर आए थे, राइट? और क्या बैरियर्स आए थे? लैंग्वेज सेम बोल रहे थे, वर्ड्स सेम बोल रहे थे, और उन वर्ड्स के साथ साथ अलग अलग मतलब निकाल रहे थे. तो वो मतलब अगर अलग निकल रहा था तो कम्युनिकेशन पूरी हैम्पर हो रही थी. कई तरीके के हम चैलेंजेस ऐसे फेस करते हैं इन आवर पर्सनल लाइव्स, इन आवर प्रोफेशनल लाइव्स. ऑफिस में आपने कॉलीग को कुछ कहा और उन्होंने कुछ और समझा. घर में आपने अपनी मॉम से या अपने डैड से या अपने या फ्रेंड से कुछ कहा, आपने ए कहा, उन्होंने जेड समझा. और ये समझने के वजह से, ये गैप होने की वजह से इफेक्टिवनेस की गोची हो जाती है, गड़बड़ हो जाती है. और किस तरह के हम बैरियर्स फेस करते हैं कम्युनिकेशन में, इफेक्टिव कम्युनिकेशन में, इसके अलावा आई एम गोइंग टू टॉक टू यू अबाउट दोस एज वेल. सबसे पहले तो हमारा बैरियर जो हमने यहाँ पर बात की, इसको हम कॉन्टेक्स्ट कहेंगे. कि कॉन्टेक्स्ट, हम जो कह रहे हैं, हम जिस कॉन्टेक्स्ट से एक शब्द का यूज कर रहे हैं, सामने वाला उसको किसी और कॉन्टेक्स्ट में समझ रहा है, और फिर हम एक पेज पे नहीं आ पाते हैं. इफेक्टिव कम्युनिकेशन हम तभी कर पाते हैं व्हेन यू एंड आई आर एग्जैक्टली, एब्सोल्युटली ऑन द सेम पेज. व्हेन आई से ए, you understand A. Now, another barrier that we face a lot of times when we communicate is the, I call it the beat barrier, the song beat barrier. Now, what does that mean? Well, the song beat barrier means I may have a music beat playing in my head and I want to communicate it to you. Now, when I go ahead and communicate that beat to you, मैं अपने दिमाग में क्योंकि बीट बजा रही हूँ, मैं अपने दिमाग में ये भी सोच रही हूँ, अरे उनको तो सब कुछ समझ में आ ही रहा होगा. मैंने अपने दिमाग में सोच लिया, मतलब मैंने आपसे कह दिया. क्यों? क्योंकि मेरे दिमाग में तो वो बीट बज रही है, लेकिन आप तक वो बीट जब तक मैं बताऊंगी नहीं तब तक पहुंचेगी नहीं. सो कई बार हम ये बैरियर भी एक्सपीरियंस करते हैं. तीसरा बैरियर जो हम एक्सपीरियंस करते हैं अपने कम्युनिकेशन में, जो उसको इफेक्टिव बनाने से रोकता है, वो होता है इमोशंस का. रिमेंबर, ह्यूमन बीइंग्स आर सोशल beings, social animals as they say. We all like to interact. And the other thing is, we all are bundles of emotions as well. We have emotions, we live with them day in and day out. Sometimes we are aware of them, and a lot of times we are not aware of them. So that also causes a big barrier in communication. ना सिर्फ मुझे अपने इमोशंस को समझ पाना और उसके हिसाब से बात करना, बल्कि सामने वाले के इमोशंस को समझ पाना और उसके हिसाब से अपनी बात को करना, बात को ढालना, बात को समझाना, वो भी कई बार हमारे लिए बैरियर हो जाता है, जिसे हमें ओवरकम करना बहुत जरूरी है. एक बैरियर और मैं शेयर करना चाहूंगी, पॉइंट आउट करना चाहूंगी, वो है लैक ऑफ रपो. एक तालमेल. कोई भी रिश्ता, कोई भी रिलेशनशिप, कोई भी कम्युनिकेशन एक दूसरे के बीच में तभी इफेक्टिव हो पाती है जब हमारे बीच में तालमेल हो. जैसे
दो लोग अगर डांस करते हैं तो अगर हार्मनी में डांस नहीं करेंगे तो वो एक अच्छा डांस नहीं लगेगा। जैसे सिंगर गाए और हारमोनियम या पियानो किसी और ही बीट पर बजे, अगर तालमेल ना हो, वो फिर इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगी। तो इन सब बैरियर्स को हमें ओवरकम करना जरूरी है, और अगर हमको ए कहना है और सामने वाले को भी ए ही समझाना है, तो इन बैरियर्स को ओवरकम करना बहुत 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 जरूरी हो जाता है। सो आई एम गोइंग टू पॉज हियर एंड चेक कि अगर कोई क्वेश्चंस हैं या कोई कमेंट्स हैं या कुछ शेयर करना चाहेंगे अभी हमारे साथ। Madhu Didi, I think you can continue for the time being, and we'll see in 5 minutes if any comments are there. Sure. So Rahul, अगर कभी कोई क्वेश्चन आए तो just pitch in and Yeah, just sure. say Yes. कि ये सवाल का जवाब थोड़ा सा urgent है. Anything is on fire, then we will also be on fire to give the answers. Great. All right. So with that, now we're going to talk about what can we do in order to have effective personal and business communication. किसी से भी बात करनी है, हमारा aim है कि हम communication करें aim के साथ. So I'm going to give you an acronym here. This acronym, तो aim तो होना ही चाहिए, purpose तो होनी बनती ही है. Purpose के बगैर तो कोई communication हो नहीं पाती है ठीक से, right? तो उस purposeful communication को करने के लिए मैं एक acronym share करूंगी, और वो acronym है AIM. AIM. That's the spelling of AIM. Well, I'm also learning. So A stands for audience. Who am I talking to? I'm live on Facebook, right? Or YouTube, or wherever I am. Who are my audience? Who am I talking to? I need to understand that. Am I talking to my parents? Am I talking to my children? Am I talking to my friends? Am I talking to my colleagues? Am I talking to my subordinates? Am I talking to my leadership? Am I talking to my senior leadership? Right? Who am I talking to? Based on who I am talking to, my entire course of communication, messaging will depend. So I need to know who remember, like, we need to build that connect, we need to build that rapport. So सबसे ज्यादा जरूरी हमको ये समझना हो जाता है कि जिनसे हम बात करने जा रहे हैं वो क्या चाहते हैं, right? I and M, I will let you know what that means. Let's talk about A, which I said is audience, right? So it's important that we get into their mindset, understand what do they really want to do, what do they really want to hear. Remember, listening is only complete when they listen to us effectively. So in order for us to get them to hear us or listen to us, not just hear us, listen to us, we need to get into their mindset. And how can we get into their mindset? We can get into their mindset only when we ourselves are calm, composed, and ready to get into their mind. हमें अपने आप को अपने आप से ऊपर उठकर देखना होगा. कई बार क्या होता है, हम कम्युनिकेट करते हैं और हम सोचते हैं कि अरे मैंने उसको बता देनी है ये बात, मैं बता दूंगी मैंने कहना क्या है बस. But it's not about me. It's about that collaboration, that interaction, that enthusiasm, that passion that you want to infuse in your audience. So you need to make yourself calm and composed. एक छोटी सी कहानी याद आती है. तो बुद्धा ने अपने बुद्धा से अपने से किसी एक उनके फॉलोअर ने पूछा कि क्या है ये, मैं शांत कैसे हो सकता हूँ. सब कहते हैं कि अच्छी बात करने के लिए, अच्छी लाइफ बिताने के लिए शांत होना बहुत जरूरी है. तो बुद्धा ने उन्हें बोला, वो एक समुद्र के किनारे, एक नदी के किनारे बैठे थे. तो उन्होंने बोला ये कुछ पत्थर उठाओ और आप इसको इस नदी में फेंको. और जैसे ही उन्होंने नदी में वो पत्थर फेंके तो पानी उथल पुथल हो गया, हिलने लग गया, खूब तूफान आ गया उसके बीच में.
बुद्धा ने फिर उनसे पूछा कि आपको क्या दिखाई दे रहा है? तो बोले, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा, मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा, मैं कुछ ठीक से नहीं देख पा रहा हूँ। तो बुद्धा ने बोला, अच्छा ठीक है, ऑब्जर्व करते जाओ, ऑब्जर्व करते जाओ। और धीरे 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 पानी शांत हो गया। जब पानी शांत हुआ तो बुद्धा ने बोला, अब बताइए आप क्या देख पा रहे हो? तो वो फॉलोअर ने बोला, मुझे बहुत कुछ दिख रहा है, मुझे मछलियां दिख रही हैं और मुझे अच्छा सा ये पानी दिख रहा है, ये गहराई दिख रही है, मैं सब कुछ साफ साफ देख पा रहा हूँ। जिससे कि इसे हम ये समझते हैं कि जब जब मेरा खुद का मन शांत होगा, जब मेरे खुद के अंदर की खलबली शांत होगी, मैं तभी सामने वाले को अच्छे तरीके से समझ पाऊंगा। सामने वाले के दिमाग में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, उसको देख पाऊंगी, सुन पाऊंगी और समझ पाऊंगी। तो इसलिए अपने दिमाग में स्थिर होना बहुत जरूरी है। और अक्सर हम अपने दिमाग में बहुत सारी परसेप्शंस लेके जाते हैं। जब हम मिलने जाते हैं, हम पहले से सोच के जाते हैं ये बंदा ऐसा है या ये बंदा वैसा है, और फिर हम उस हिसाब से अपना मैसेज कम्युनिकेट करना शुरू कर देते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम सोचते हैं, अरे ये बहुत जिद्दी है, ये बहुत हठी है, ये मेरी बात सुनेगी तो है ही नहीं। तो जब मैं उससे अपनी बात कहने जाऊं तो मेरे टोन में वो झलकेगा, वो गुस्सा। मैं कब से कहने की कोशिश कर रही हूँ यार, तुमने समझना तो है नहीं। That will reflect in my tone, in my mood, in what I say, and not just what I say, how I say what I say. So, in order for you to get into this other person's mindset, आपको अपने mindset को शांत भी करना है और अपने judgment को, अपने preconceived notions को थोड़ा सा settle करके, yes, वो जा नहीं सकते हैं completely, but उनको थोड़ा सा settle करके, उन सबसे ऊपर उठ के एक खाली पेज, एक ब्लैंक पेज से इंटरेक्शन को करने की शुरुआत करने की कोशिश करनी चाहिए. So that is what we need to do in order to understand audience. Now, another learning that I want to share with you is, देखिए, जैसे हाथ की पांचों उंगलियां बराबर नहीं हैं, जैसे आसमान में तारे अनेक हैं, जैसे जैसे हमारे आसपास कई चीजें हैं, भिन्न भिन्न प्रकार की चीजें हैं, वो वैसे ही हम सब भी अलग अलग तरह से हैं. हमारा बात करने का तरीका, हमारा सोचने का तरीका अलग होता है. तो जब हम ऑडियंस की बात करते हैं, हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हम समझें कि वो बात को किस तरीके से समझते हैं, वो भाषा कौन सी बोलते हैं. Now, when I say bhasha, I don't mean English, Hindi, right? There are 4 types of people, or might I say 4 languages that people speak. And that's the language that they understand as well. उनका जो ब्रेन है, हमारा जो ब्रेन है, बातों को उसी तरीके से सुनता है और समझता है. मैं इसको आपको ऐसे कुछ बताऊंगी कि पहली भाषा, पहली लैंग्वेज क्या है. वो एक गाना है ना, आंखों ही आंखों में इशारा हो गया. इसका मतलब क्या है कि इनको इस तरह के ऑडियंस जो आपके होते हैं, जो हम लोग होते हैं, उनको विजुअली चीजें ज्यादा समझ में आती हैं. तो उनके लैंग्वेज में वो विजुअल वर्ड्स को काफी यूज करेंगे. अच्छा, दूसरी तरह की लैंग्वेज क्या होगी? सुनिए सुनिए, कहिए कहिए ना, कहते कहते, राइट. तो ये इसमें सुनने और कहने की बात है. तो दूसरी तरह की लैंग्वेज जो लोग यूजुअली बोलते हैं वो होती है ऑडिटरी. उनको इसी तरह से बात ज्यादा समझ में आती है और इसी तरह से अपनी बात को ज्यादा रखते हैं. अच्छा, तीसरे तरह के लोग या तीसरी भाषा क्या होती है? जादू है, नशा है, मदहोशियां, तुझको भुला के अब जाऊं कहाँ, राइट. ये है भावनाओं की बात, ये है फीलिंग्स की बात. कई लोग होते हैं जो इस तरह से बात को समझते हैं और कहते भी हैं. उनमें आप बहुत सा ये सुनोगे कि मेरी फीलिंग ऐसी है, मुझे ऐसा लग रहा है, मैं ऐसा महसूस करती हूँ या महसूस करता हूँ.
अच्छा, एक चौथी तरीके की भी ऑडियंस होती है, या चौथी तरीके की भी लैंग्वेज होती है जिसको हम कहते हैं, और इसके लिए हमारा गाना है, हम सोचते ही रह गए और प्यार हो गया, राइट? तो ये इस लैंग्वेज को बोलते हैं ऑडिटरी डिजिटल। इस लैंग्वेज को जो लोग यूज करते हैं प्रेडोमिनेंटली, उन लोगों को बात एनालिसिस से ज्यादा समझ में आती है। वो पहले सोचते हैं, समझते हैं, उसका निष्कर्ष तभी निकालते हैं। वो फैक्ट्स पे जाएंगे, वो डेटा पे जाएंगे। सो ब्रॉडली हमारे ऑडियंस इन 4 भाषाओं को बोलते हैं और इन 4 भाषाओं को समझते हैं। अब आप ये कैसे समझ सकते हैं कि कौन सा मेरा ऑडियंस, मैं जिससे बात करने जा रही हूँ, वो कौन सी भाषा समझेगा या समझेगी? उनके वर्ड्स में, उनकी राइटिंग स्टाइल में, उनके मैसेजेस में, उनके हाव भाव में आपको ये क्यू बहुत आराम से मिल जाता है। और ज्यादातर लोग जो हैं वैसे वो विजुअल होते हैं। सेकंड प्रिफर्ड लैंग्वेज बहुत सारे लोगों की ऑडिटरी होती है, देन कम्स किनेस्थेटिक या फीलिंग्स, एंड देन ऑल्सो द ऑडिटरी डिजिटल। तो ये 4 भाषाओं को आप यूज करिए। अब आपको एज अ कम्युनिकेटर आवाज या भाषा बदलनी, अपनी नहीं बदलनी है। एक रबर बैंड को इमेजिन कीजिए और आप अपना जो एक रबर बैंड की जो शेप है उसको समझिए कि वो आपका कम्युनिकेशन स्टाइल है, आपकी लैंग्वेज है। लेकिन मान लीजिए आपकी लैंग्वेज ऑडिटरी डिजिटल है और आप जिससे बात करने जा रहे हैं, से जिसको अपना दिल देने जा रहे हैं, या अपने टीचर से बात करने जा रहे हैं, या अपने लीडर से बात करने जा रहे हैं, उनकी लैंग्वेज विजुअल है, तो आप रबर बैंड को स्ट्रेच करके विजुअल वाले जोन में जाएंगे, उनके नजरिए से बात को देखेंगे, समझेंगे, और उस हिसाब से उनके शब्दों का प्रयोग करते हुए उनको जवाब देंगे। जैसे आपसे किसी ने कहा, आई सी दैट यू हैव मेड अ ब्यूटिफुल प्रेजेंटेशन, तो इसमें सी शब्द का प्रयोग किया है, एंड तो फिर आप उनकी लैंग्वेज को समझेंगे और उस हिसाब से रिस्पॉन्ड करेंगे। आई लाइक द साउंड ऑफ व्हाट यू आर शेयरिंग, मतलब ये ऑडिटरी है, तो आप उस हिसाब से उनको जवाब देंगे। तो ऐसे ही चलते चलते लोगों से प्यार करते आप अपने ऑडियंस को समझिए और उनसे कम्युनिकेट कीजिए। मैं पॉज करूंगी। राहुल, कुछ कहना है, कुछ सुनना है? Yes, people are appreciating and they are liking it, and they're writing thank you, and we are enjoying it. Those sort of messages are coming, and no question as such. Sure. Yeah. So please do type in your questions in the chat box and we will be happy to answer them. अब हम चलते हैं एम, क्योंकि हमको अपनी प्रेजेंटेशन, अपनी कम्युनिकेशन एम के हिसाब से करनी है। हम चलते हैं आई पे। तो आई का क्या मतलब है? इंटेंट। मेरा इंटेंट क्या है, मैं क्या कहना चाहती हूँ, मैं क्यों कहना चाहती हूँ, मैं ये कम्युनिकेशन करने के लिए मेरा रीजन क्या है, मेरा पर्पस क्या है। ये जब तक मुझे क्लियर नहीं होगा तब तक मैं अपना मैसेज सामने वाले को सटीक शब्दों में नहीं कह पाऊंगी। तो important है for me to know what my intent is and have that clear intent. In order for you to have a clear intent, what do you need to do? You need to know कि मैं जो ये मैसेज कह रही हूँ, मुझे ये क्यों कहना है, मुझे ये किससे कहना है, मुझे ये कब कहना है, मुझे ये कहाँ कहना है। इंग्लिश में बोलूं तो you know, we call this a 5 wives and 1 husband. हम सब ने 5 हस्बैंड और 1 वाइफ की कहानी तो सुनी है, बट ये कहानी है 5 wives and 1 husband की। कहानी ऐसी है कुछ कि 5 W's and 1 H को अपने दिमाग में रखना है जब आप अपने इंटेंट को क्लैरिफाई करोगे, अपने मैसेज के लिए तैयारी करोगे। What are these 5 W's and 1 H? What, when, why, where, who and how. What, when, why, where, who and how. ये सब चीजें जब आपके दिमाग में क्लियर है,
तो आपके सामने आपका इंटेंट एब्सोल्युटली क्लियर है. व्हाट मतलब मुझे क्या कहना है, वेयर मतलब मुझे किस स्टेज पे कहना है, किस वक्त किस से कहना है, वो कौन सी जगह है जहां पे मुझे ये बात रखनी है, ये बात करनी है. व्हेन मतलब उसका सही वक्त क्या रहेगा जब मैं ये बात करूं कहूं, राइट. हु मतलब मुझे किससे कहनी है, वो आपके ऑडियंस में भी आ गया, राइट. व्हाई, क्यों कहनी है, अगर मैं नहीं कहूं तो क्या हो जाएगा, अगर मैं कह दूं तो क्या होगा, मेरा आउटकम क्या है. यूजुअली इसमें हमारे ब्रॉडली 3 रीजंस हो सकते हैं. हो सकता है मैं कुछ कहना चाहती हूँ क्योंकि मुझे किसी को कुछ करने के लिए मोटिवेट करना है, एनकरेज करना है, तो मैं उस हिसाब से अपना मैसेज डिसाइड करूंगी. या हो सकता है मुझे किसी से कुछ चाहिए, कोई एक्शन चाहिए, तो वो एक्शन अचीव करने के लिए भी मैं अपनी मैसेज को कहती हूँ. या मुझे वो बात सामने वाले को सिर्फ इसलिए बतानी है क्योंकि मुझे बतानी है, उनको नॉलेज होनी चाहिए. कई बार गॉसिप शायद हम इसलिए कर लेते हैं कि पता चले कि क्या कहा, बस शेयर करना था. और उसके बाद शेयर करने के बाद कई बार हम ऐसे भी बोलते हैं सानू की. सो sharing your message, you need to know why you want to share what you want to share, and then how. जो आप मैसेज कहना चाहते हो उसको आप लिख के कहना चाहते हो, क्या बोल के कहना चाहते हो, एसएमएस दे के कहना चाहते हो, कैसे कहना चाहते हो, वो भी आपके दिमाग में क्लियर होना एब्सोल्युटली जरूरी है. तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए अपने मैसेज की क्लैरिटी रखो, अपने इंटेंट को क्लियर रखो, और फिर आप आगे बढ़ के मैसेज शेयर करो. कुछ कहना चाहेंगे राहुल? नहीं, you can continue. Yes. Sure. Yeah. अब जो लास्ट पार्ट आता है एम का, so A was audience, I was intent, and M is जिसकी हम बात करते आए हैं अभी तक, जो कहना है वो बन जाता है हमारा मैसेज. अब ये मैसेज क्या है, इस मैसेज को मैं कैसे डिलीवर करूं, ये भी बहुत जरूरी हो जाता है. In order for me to make it effective, I need to know how to structure my thoughts, how to structure my message. Now, it needs to be, now remember, when we share our message, it cannot be beating around the bush. I cannot say, अच्छा ऐसा हुआ, वैसा हुआ, फिर ये हुआ, फिर वो हुआ, फिर पता नहीं क्या हुआ. तो ऐसा वैसा ये वो पता नहीं से ज्यादा बात तो समझ में नहीं आती है. So it becomes important for us to make our message absolutely clear. उसके लिए एक छोटा सा फॉर्म है. So Madhu Didi, there is a question, if you can take it. Yeah. Sure. So Bridge ma'am का question है that while communicating, if we lost our point, how do we come back to the point? Yeah. If you lost your point, when do you come back to your point? उसका आंसर मैम, मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा है और बट मैम उसका आंसर यही होगा कि आप अगर अपना पॉइंट कहीं गुम गया है तो आप उसको वापस ऐसे ला सकते हैं कि आपकी जो ऑडियंस के साथ, जिसके साथ आप बात कर रहे हैं, अगर रपो अच्छी है तो आपको फीडबैक मिलेगा. और जो मेरा लास्ट पॉइंट है जो मैं आपसे शेयर करूंगी, वो फीडबैक में आप समझोगे कि पॉइंट गुमा क्यों, पॉइंट खोया क्यों, पॉइंट खोया कहाँ, और वहीं से फिर उसको हम गर्दन पकड़ के वापस ला सकते हैं. वो उसके लिए कोलैबोरेशन, कोऑपरेशन, रिमेंबर कम्युनिकेशन is never a one way process, it's a two way process. जब हम सामने वाले से समझेंगे और उसकी गहराई में जाएंगे तभी हमें समझ में आएगा कि हमारा पॉइंट गुम कहाँ हुआ, क्यों हुआ, और फिर उसको हम वहीं से बहुत दूसरे सामने वाले के लिए भी सेंसिटिव होते हुए उस पॉइंट को हम वापस ला सकते हैं. तो वापस आते हैं मैसेज पे. मैसेज को कहने के लिए एक छोटा सा टिप है. एक तो हमको अपने मैसेज को किस करना चाहिए, KISS, मतलब नॉट लाइक किस मीनिंग कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल, keep it short and simple, and also by the way sincere.
जो हम बात दिल से कहते हैं वो दिल तक जरूर जाती है। मैंने ये किनेस्थेटिक या फीलिंग वाली भाषा बोली है थोड़ी, बट जो हम बात दिल से कहते हैं, हम खुद जिसके बारे में कन्विंस्ड होते हैं, वो बात सामने वाले तक जरूर पहुंचती है। और जब आप मैसेज कम्युनिकेट कर रहे हो, उसकी जब आपने टाइमिंग भी आपने डिसाइड कर ली होगी अपने 5 W's and 1 हस्बैंड के थ्रू, तो वो टाइमिंग भी सही रखना बहुत जरूरी हो जाता है। तो मैसेज को शॉर्ट एंड क्रिस्प रखो, मैसेज को अपने दिमाग में क्लियर रखो, और मैसेज को उसी लैंग्वेज में कम्युनिकेट करो जो हमारे ऑडियंस और आप समझ सकते हैं। मतलब ऐसे नहीं हो सकता कि मैं ते पंजाबी च गल करदी पई हां तां तुसी बोलदे हो, तो फिर आप कहो कन्नड़ा गोतिल्ला, या आपने जे कॉल करत आहात सध्या दूसरा कॉल पर व्यस्त आहे। तो अपनी लैंग्वेज को भी अपने ऑडियंस के साथ मैप करके ही आप अपने मैसेज में डालोगे। मैसेज में एक चीज और आपको ध्यान रखनी है, हम सबको ध्यान रखनी है कि क्रक्स क्या है। जैसे मैंने बोला, बीटिंग अराउंड द बुश नहीं कर सकते। क्रक्स क्या है? जब आप ईमेल लिखते हैं तो 1 थॉट 1 पैराग्राफ का रूल अप्लाई कर सकते हैं। जब आप फोन पे बात करते हैं या फेस टू फेस बात करते हैं, तो आप ध्यान रख सकते हैं कि आपके कीवर्ड्स क्या होने चाहिए, जैसे आप बोलोगे, और अपने टोन पे, अपनी पिच पे, अपने वॉल्यूम पे आप फोकस कर सकते हो, और अपनी वॉइस मॉड्यूलेशन पे। रिमेंबर, मैसेज होता क्या है, मैसेज को हम किस माध्यम से शेयर करते हैं? इट्स द लैंग्वेज दैट वी यूज। अब जब हम बोलते हैं तो हम उसमें एक तो होता है व्हाट यू से, दूसरा होता है हाउ यू से व्हाट यू से। तो व्हाट यू से में तो आपके वर्ड्स आ गए, और हाउ यू से में आपके वोकल्स, आपका टोन, आपकी पिच, आपकी बॉडी, आपका वॉल्यूम, वो सब आता है। और तीसरा एलिमेंट आपका बॉडी लैंग्वेज भी होता है, जिसको हमने खास तौर से ध्यान रखना है। तो जब हम बात करते हैं मैसेज में, और हम वर्ड्स और टोन और बॉडी लैंग्वेज की बात करते हैं, ये ध्यान रखना है कि इट्स नॉट जस्ट व्हाट यू से, बट हाउ यू से मैटर्स अ लॉट। इट्स लाइक दिस, हम कह सकते हैं कि आई डिडंट स्टील दिस मनी। ये मैंने एक सेंटेंस बोला, तो अगर मैं बोलूं आई डिडंट स्टील दिस मनी, पूरा भाव बदल जाता है। और मैं बोलूं आई डिडंट स्टील दिस मनी, तो मीनिंग बदल जाता है। तो हमारे टोन और हम जिस तरीके से मैसेज को कहते हैं, उससे हमारे मैसेज का भाव बदल जाता है। वैसे मैंने कोई पैसा चुराया नहीं है, मैं सच्ची बता रही हूँ। राइट? सो और बॉडी लैंग्वेज जो हमारा तीसरा एलिमेंट है, वो भी हमको उसका खास ध्यान रखना होता है। अब बॉडी लैंग्वेज के लिए मैं खास तौर से अपने विजुअली इम्पेयर्ड फ्रेंड्स के लिए बोलूंगी। हो सकता है क्योंकि हमें दिखता नहीं है, कई बार हम खुद मिस आउट कर जाते हैं, सामने वाले का बॉडी लैंग्वेज हमको नहीं दिखता, अपने बॉडी लैंग्वेज पे मिस कर जाते हैं। हम हो सकता है अपने मुंह को कवर करके बात कर रहे हो। इन चीजों को मैं कभी कभी ब्लाइंडिज्म्स बोलती हूँ। या हो सकता है हम हिल के बात कर रहे हो, या हो सकता है हम अपने बालों से खेल के बात कर रहे हो, या हो सकता है हम अपनी उंगलियां चटका के बात कर रहे हो। हम जिस तरीके से बात करेंगे, हमारी जो बॉडी लैंग्वेज है, या हो सकता है हम आर्म्स क्रॉस्ड करके बात कर रहे हो, हमारी जो बॉडी लैंग्वेज है वो बहुत कुछ कहती है। आपको नहीं समझ में आता, अनकॉन्शियसली हम करते होंगे, अपनी आंखों पे हाथ रख के बैठ सकते हैं, हमें नहीं समझ में आता, लेकिन सामने वाला उससे बहुत कुछ समझता है। जैसे ब्रिज मैम ने कहा था, मैसेज फिर कहीं का कहीं पहुंच सकता है। तो इसलिए अपने बॉडी लैंग्वेज पे भी हमें खास ध्यान देने की जरूरत है। तो मैसेज में ये कुछ चीजें ध्यान रखिए। और लास्ट बट ये हुआ हमारा एम, ऑडियंस, इंटेंट एंड मैसेज। अब ये सब मैंने तो बोल दिया, लेकिन कम्युनिकेशन इफेक्टिव और कंप्लीट कब होगी? जैसे मैंने शुरू में कहा था, अगर मैंने ए कहा तो आपको क्या ए समझ में आया? वो तभी होगी जब मैं सामने वाले से कॉन्स्टेंटली फीडबैक लूं, कॉन्स्टेंटली समझूं कि वो मेरे साथ इन सिंक है कि नहीं है, कॉन्स्टेंटली ऑब्जर्व करूं कि मेरी उनके साथ रपो अच्छी बिल्ट इन है कि नहीं है, कॉन्स्टेंटली मैं भी सुनूं। लिसनिंग इज अ वेरी
इम्पोर्टेंट स्किल जो हमने स्कूल में उतनी मतलब एट एन एजुकेशन लेवल नहीं सीखी है. Remember, we always learned to read, we learned to write, we learned to speak, but rarely did we learn listening skills. And जब आप आगे बढ़ते हैं या बात करते हैं तो listening skills बहुत ही important role play करती हैं. तो आप feedback लें और उसको सुने और सुन के समझ के अपनी conversation को आगे बढ़ाएं. That is how your communication can become effective. अब मैं और एक acronym आपके साथ share करना चाहूंगी, which is going to be for you to make your communication impactful and powerful. But with that, before that, I'm going to pause and ask Rahul, क्या हाल है? आंखों देखा हाल बताइए. Yes, there is a question from Swati Sinha. Okay. And she wants to know about the written communication. She says that how will we get to know that what kind of data or representation the person would like to see if we are ready with our presentation, and how will we get to know that the person wants to see a graph? How do we communicate on that? Probably that she wants to understand. I'm just taking a cue from what I said, Swati. Probably your question could be कि जो हमने 4 languages की बात की उनका हमें email में कैसे पता चलेगा. अगर वो आपका question है तो आप उनके message को उनकी emails को पढ़िए, पुरानी emails को पढ़िए और उसमें आपको समझ में आएगा उनके ईमेल में इन शब्दों का यूज किया होगा. I saw the report that you shared, Swati, and my views are. तो उनका विजुअल है. अगर उन्होंने ईमेल में लिखा I heard you say something the other day and this is what I would like to say. तो मतलब वो ऑडिटरी उनका पर्सपेक्टिव है, नजरिया है, लैंग्वेज है. अगर वो बोले कि I am really excited to see your presentation, तो वो feeling word है, मतलब kinesthetic है. अगर उनके ईमेल में आया looked at the analysis, or through your analysis or my analysis of what you shared is, तो उनका mostly perspective auditory digital है. अगर आपके सवाल का एक पार्ट ये है कि मुझे कैसे पता लगेगा कि उनको ग्राफ चाहिए या चार्ट चाहिए या पीपीटी चाहिए या एक्सेल में चाहिए, बेस्ट वे इज पूछो. ask them. You can really check with them how would you like it to be. So I hope that answers your question. Okay, so there are few more comments that I would like to read for you. Mr. Anil Joshi is commenting, great to hear you, Madhu. Vipasha Sen, she is commenting, amazing speaker. Thank you. So these are the few comments that I would like to make you aware of. Yes, you can continue. Thank you. Okay, so I'm going to share now and remember, just to summarize so far what have we learned. Audience, so in order to aim our communication effectively, we need to follow aim, which is audience, intent, and message, right? And your message has to be short and crystal clear. Your language has to be as per what audience will understand. Now, moving on, I want to give you one acronym in order for you to make your presentation, your communication most effective. We are dealing with people, so the acronym also is people. P-E-O-P-L-E. Now, what does this stand for? Well, P stands for posture, and some bit of it may be like a repeat, but it becomes easier for us to remember it like that, right? So P stands for posture and gesture. Posture and gesture, how is your posture? How is your gesture? अगर हम हाथों को अपने चेस्ट के आगे फोल्ड करके रखते हैं तो लोगों को कई बार ऐसा इंप्रेशन आता है कि मैं डिफेंसिव हूँ, मैं अपनी बात को खुल के नहीं रख रही हूँ. या हम अपने हाथों को बहुत ज्यादा झपड़ झपड़ मारते हैं, ज्यादा चलाते हैं, तो हो सकता है हमारे
जेस्चर्स हमारे मैसेज के साथ इन सिंक ना जा रहे हो। तो हमें अपने मैसेज को कंट्रोल, अपने हैंड मूवमेंट को अपने बात के साथ, अपने मैसेज के साथ हमको यूज करना चाहिए। जैसा हम कहना चाहते हैं उसके साथ सिंक्रोनाइज होना जरूरी है। E stands for eye contact. Well, even if some of us cannot see, it is important for us to maintain eye contact. And how can you maintain eye contact if you cannot see? हमको आवाज जिस डायरेक्शन से आती है हम उस तरफ देख सकते हैं। और most of our people, the people who we are interacting with, they can see, right? So if they can see and you can't, does not mean we can't look at them. We can look into their eyes or look at them. जो देख सकते हैं और देख कर eye contact maintain करते हैं, well, it's important to ensure कि हम जिनसे बात कर रहे हैं उनके साथ at least 2/3 of the time eye contact बनाएं। आई कांटेक्ट बनाने का मतलब ये नहीं है कि आंखों के अंदर डुबकी मार लेनी है, बट हमारे फोरहेड और नोज के बीच में, मतलब दोनों आईज, हमारे आंखों का ये वाला, यहाँ दोनों आंखों का जो रीजन होता है और नाक, ये ट्रायंगल बनता है, उसके बीच में हमको देखकर इंश्योर करना है कि हम लोगों को देख रहे हैं। If we look into their eyes, that can make them uncomfortable. If we're constantly looking away, that may make them feel कि हम उनकी बात में interested नहीं है। और आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, वो तो हमने कहा ही था। तो आंखों से कई बार बहुत कुछ समझ में आता है। आपको ये फीडबैक भी मिलता है कि सामने वाले को आपकी बात समझ में आई है कि नहीं आई है। O stands for orientation. Orientation means हम सामने वाले बंदे से जिसे बात कर रहे हैं, हमारी उनके बीच में डिस्टेंस कितना है। अच्छा, हम जब बात करते हैं तो हम अपने हाथों को जब आगे लाते हैं और आगे से अपने पीछे तक ले जाते हैं, तो वो हमारा एक पर्सनल स्पेस या पर्सनल जोन बनता है। उस जोन में यूजुअली, वैसे तो आजकल हम वैसे ही कितना 2 फुट दूरी बनाकर चलते हैं, वो तो बात है ही, पर बचपन में हमने सीखा था कि 1 आर्म डिस्टेंस मेंटेन करना बहुत जरूरी है। तो वो 1 आर्म डिस्टेंस जब हम मेंटेन करते हैं, उससे इंश्योर होता है कि हम किसी के पर्सनल स्पेस में एंक्रोच नहीं कर रहे। एक ओरिएंटेशन का मतलब ये है। दूसरा ओरिएंटेशन का मतलब ये भी है कि हम जो मैसेज कन्वे कर रहे हैं उसको स्पीकर के हिसाब से, लिसनर के हिसाब से ओरिएंट करके बताएं। P stands for presentation. देखिए, प्रेजेंटेशन के बारे में तो जितना कहा जाए उतना कम है। वो कहते हैं ना, जो दिखता है वो बिकता है, या जो आंखों को भाया वही जीभ को भी भाया। पेट को, जीभ को वही अच्छा खाना लगता है जो देखने में अच्छा लगता है। ये थोड़ी विजुअल रिप्रेजेंटेशन है, बट दैट्स द होल पॉइंट। आप शॉपिंग के लिए भी जाते हैं, जो चीजें आगे आगे रखी होती हैं वो उसी हिसाब से रखी होती हैं कि वो बहुत सुंदर लगे और लोग उनकी तरफ, लोग शॉप्स की तरफ अट्रैक्ट हों। तो अपने मैसेज को जितना प्रेजेंटेबल आप बना सके, जितने अच्छी तरह से आप सजा के रख सके, एंड दैट्स अ टॉपिक फॉर अनदर डे मे बी, राइट, उतना आपकी इफेक्टिवनेस बात करने में बढ़ सकती है। L stands for looks. Well, are looks important? Absolutely. जो हमारी looks हैं, अब looks का मतलब ये नहीं है गोरा चिट्टा काला या ब्राउन या लंबा। I'm not talking about physical characteristics. I'm talking about how you carry yourself, how the kind of clothes you wear. जैसे हम शादी पे जाते हैं तो हम सज धज के जाते हैं, जैसे हम इंटरव्यूज के लिए जाते हैं तो हम फॉर्मल कपड़े पहन के जाते हैं, जैसे हम ऑफिस जाएंगे तो हम फटी हुई जीन्स पहन के, टॉर्न जीन्स पहन के नहीं जा सकेंगे। तो जिस मोड में, जिस भाव से आप अपना मैसेज कन्वे करना चाहते हो, उस हिसाब से आपके लुक्स भी मैटर करते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हर थोड़ी देर में हम कपड़े बदलेंगे क्योंकि हमको मैसेज के हिसाब से अपनी लुक्स बदलनी है, बट लुक्स एक ब्रॉड टॉपिक के हिसाब से मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। E stands for expression of emotions. हमारा चेहरा बहुत कुछ कहता है, हमारे वॉइस बहुत कुछ कहती है,
और हम अपने फेस को और अपनी वॉइस को यूज कर सकते हैं अपने अपने बात में भाव डालने के लिए, इमोशंस डालने के लिए. So that's what that is how you can use people to have an impact on people. So that's something that I wanted to share, and now I'm going to pause for questions. Audio now unmuted. Yes. So far, I think we have covered all the questions which are there in the comments. So we'll let you know as and when we receive more questions. Oh, okay. मैंने तो बहुत सारा टाइम आपके क्वेश्चंस के लिए फैक्टर इन किया था. मुझे लगा आपके तो सवालों की बरसात होगी. बट कोई क्वेश्चंस अगर नहीं है तो इसको प्रैक्टिस जरूर कीजिए, राइट? एंड एज दे से, प्रैक्टिस मेक्स man perfect. Well, women are born perfect. No, Rahul will straight away come from the screen and hit me. ये सिर्फ एक कहने का तरीका है. Men and women, right? Human beings. Practice makes all of us perfect. कोई भी, वो कहते हैं ना, जब बच्चा पैदा होता है तो ऐसा होता है ना, पेरेंट्स ये नहीं कहते ओ मुबारक हो, कम्युनिकेटर हुआ है या इफेक्टिव कम्युनिकेटर हुआ है. इफेक्टिव कम्युनिकेटर पैदा नहीं होते, बनते हैं. हम सब इफेक्टिव कम्युनिकेटर्स बन सकते हैं अगर हम प्रैक्टिस करें और अगर हम चाहें तो. हमें अपने दिल की बात सामने वाले तक पहुंचानी है. उसके लिए हम अगर समझें कि सामने वाला क्या कहना चाहता है, क्या समझना चाहता है, और उनके भाव के साथ अपने भाव को मिलाते हुए हम अपनी बात को रखें, हम मोस्ट डेफिनेटली इफेक्टिव कम्युनिकेटर बन सकते हैं. So there is a question from Vipasha madam, and Vipasha ji is asking that can you explain the orientation part again? Sure. Yes. Sure, ma'am. So orientation is about maintaining the distance, right? And in terms of physical distance, and also orientation has the second element to it, which is with regards to the message that we want to communicate. Now, with regards to physical distance, like I said, we all have our inner zone, personal zone, and then the public zone. तो जो हमारा इनर जोन है, कई बार क्या होता है, कुछ लोग बहुत ही पास में आके अपनी बात को कहते हैं. हो सकता है उनको लगता होगा कि हमारी बात पास में जाके शायद ज्यादा अच्छे से सुनाई देगी या ज्यादा अच्छे से रपो बिल्ड होगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है. जिससे हम बात कर रहे हैं उसको हम हो सकता है अनकंफर्टेबल कर दें अगर हम बहुत पास से बात करें. अगर हम बहुत दूर से बात करते हैं तो हम डिसइंटरेस्टेड लग सकते हैं. मुझे याद है कभी कभार ऐसे कुछ लोग कॉन्वर्सेशंस करते हैं कि मैं एक कोने में खड़ी हूँ, दूसरा बंदा दूसरे कोने में, और वहां से बात हो रही है, तो वो इफेक्टिवनेस लूज हो जाती है और प्रॉक्सिमिटी नहीं आ पाती है. Proxemics is something that you can study. Just look up proxemics and learn, we can learn more about that. Now, orientation के message के context में मैं orientation ऐसे देखती हूँ कि हमें cultural orientation या जिनसे हम बात कर रहे हैं वो लेवल की orientation होना भी important है, जरूरी है. हो सकता है हम विलेज में जाके किसी से बात कर रहे हो, तो it becomes important for us to orient ourselves to who we are talking to and orient ourselves to the culture of our audience. That can also help a lot. I hope I'm able to answer your question, ma'am. Okay. Audio now unmuted. So there are few comments from Monica Sharma. She says great. Okay. And one more comment, she says very nice. So there are many more comments, people are liking it, and yes. Well, thank you so much. So well, we're almost up the hour, right? Remember, communication is a wide subject, and communication is one of the most desired skills for being effective,
for being able for communicating what you want to say, how you want to say. Remember, even a child communicates with the mother. When the child is born, they cry, they communicate something. Through their laugh, they communicate something. Only when the child cries, the mother knows that the child is asking for milk, and the mother feeds. A communication has been close looped and communication has happened. In order for you to communicate effectively, ensure close looping. And that's where, and another response to what Bridge ma'am had asked earlier, that until and unless we have close looping, until and unless we have a clear sense of whether what we wanted to say has been understood as it is, and whether you have understood what the other person wanted to say and was feeling, only then your communication can be effective. So remember, aim, remember kiss, remember 5 wives and 1 husband, and remember people, and rock on. Have absolutely heart-to-heart communication. Thank you very much to NAB for providing me this opportunity to talk to all of you and share my views on effective communication with you. And I just want to say before I sign off that NAB is working really hard to make people survive and groom people. And NAB in these tough times is going through tough times as well, right? We do, I'm sure NAB does face financial difficulties, does face financial aids difficulties, and we'd want NAB not just to survive, but also to thrive. So I urge, it's my humble appeal to help NAB not just survive, but thrive. Let's continue the charm of NAB. Let's help NAB continue bring smiles and charm, education, well-being, and financial independence to many, many more like me. Thank you so much. Zoom meeting tools, audio now.